Hello all. Is everyone able to listen to me? You can reply me in the chat. Yes, welcome to my lecture. Now this meeting is going to last for around 40 minutes, I think, because Zoom has given a time limit of 40 minutes. And after 40 minutes, if the time goes off, then we need to reconnect again with the same ID and password. So after 40 minutes, I request everyone to join again to the meeting. Join once again. So आफ्टर एवरी 40 मिनट्स, मतलब हर 40 मिनट के बाद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि जूम का टाइम लिमिट 40 मिनट है. I hope everyone is getting admitted inside the classroom, right? Oh, there are 32 participants now. Very good. Zoom पॉपुलर हो गया बहुत. Zoom is getting popular. Okay. Fine. Is my voice audible now? Quite clear? I hope I am clear now. Right? Okay. Still participants are entering the room. So let them enter. And then we will start with the lecture. Okay. Participants are there in the room now. There are 35 participants now. Good. Okay. कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं मैं. पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि ISC 2 का रिजल्ट जो है उसमें 8 लोग फेल हो गए. 8 लोग, मतलब 8 people have failed in it, जिनको 12 के नीचे मार्क्स है. They have marks less than 12, which is actually 40%. तो मैं आप सबको पता है क्या मार्क्स आपके कंट्रोल सिस्टम के? Does everyone know the marks of control system ISC 2? कि अभी तक ग्रुप पे नहीं डाला है कुछ भी? नहीं. कंट्रोल सिस्टम के मार्क्स पता नहीं है? ओके, ठीक है. मैं ग्रुप पे कंट्रोल सिस्टम के मार्क्स पोस्ट करता हूं. उसमें जो भी फेल है वो देखो. अच्छा है रिजल्ट आपका. 8 लोग फेल हो गए कुछ तो. 8 people.
और कुछ लोग एब्सेंट थे, शायद श्रुति बिराजदार एब्सेंट थी। श्रुति है क्या? She was absent for the test. So people who have failed and were absent for the test, they need to give the test again. उनको उनके लिए मैं लिंक भेज देता हूं, तो उनको टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। I will soon put the marks on group. कंट्रोल सिस्टम के मार्क्स मैं ग्रुप पे डाल देता हूं, so don't worry about it. Everybody has done well and there is no need to worry because there are no exams for you people, but still for the concepts for the future, that is for the preparation of gate examinations, for the preparation of campus interviews, and for any such preparations where the knowledge of ENTC and some core subjects is required, we need to complete our syllabus and we need to know some parts which are very important for the future, and they are really important. And I am happy that some people are really doing some good certification courses like from TCS or anything that is available free on the internet. So I suggest that the students must complete some certifications online. There are certifications available which are free online and you can complete them. Okay? You can chat with me in the chat and you can reply to me. If you are not able to hear me, you can just convey me the feedback. I hope my voice is quite clear now. सबको मेरी आवाज जो है वो ठीक तरह से सुनाई दे रही है ना? Okay, fine. Great, great. We'll do it now. So let us start. Okay. So there are around 40 participants now, and we will start with the lecture. And anyway, the lecture is getting recorded now. So I will share my screen first with you. And I hope the screen is visible to you now, right? सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? यस? ओ, वेटिंग रूम में अभी भी है, बच्चे हैं, वेटिंग रूम में आ गए। वेटिंग रूम क्लासरूम में रहता है क्या वेटिंग रूम? ओके, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना अभी, ये आपके मार्क्स है। यू आर वॉचिंग योर मार्क्स ऑन द स्क्रीन नाउ। तो रोल नंबर 3 जो है, रोल नंबर 3, जस्ट let her know if she is present or if she is absent now, I don't know. लेकिन उनको बताओ जरूर कि उनको टेस्ट और एक बार देना पड़ेगा। रोल नंबर 3, नोट डाउन, रोल नंबर 3। फिर बिराजदार श्रुति रोल नंबर 5, वो एब्सेंट थी क्योंकि उनके मार्क्स नोट डाउन नहीं हुए एक्सेल शीट में। Shruti Birazdar, any problem with her? Anybody knows anything about her?
क्यों टेस्ट को एब्सेंट क्यों थी वो, पता नहीं मुझे भी, आई डोंट नो. Okay, fine. See here, these students, I will announce the roll numbers. Roll number 3, note down karo. Roll number 6, roll number 5, roll number 6. Okay, 3, 5, 6, 10, 12. 3, 5, 6, 10, 12. देखो 3, 5, 6, 10, 12. ये रोल नंबर मैंने लिखे हैं अभी, सबको सबको मिल गया मेरा मैसेज, राइट. उसके बाद आपको मैं लिखता हूं कौन सा रोल नंबर है. 12 के बाद 17 है. 17, 17, 24, देन 30. 17, 24, 30, 43, 44. ठीक है. 17, 24, 30. So please note down the roll numbers. ये रोल नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17, 24 एंड 30, 17, 24, 30 ये मैं फिर से पोस्ट करने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन फेल है, एंड यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट अगेन. ठीक है. एंड रोल नंबर 43 एंड 44, दामिनी रेड्डी, अंकिता रोटे, एंड देन 59, 60, आई थिंक दे आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल. 59 और 60 वाले आशुतोष है क्या कोई, एंड बिजापुरे तलमीज इज नॉट देयर, राइट. फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इज नॉट देयर. बरोबर है ना. ओके, फाइन विद दिस. These are your control system marks. The overall result of the class is 85.71%. So 48 students have passed, 8 have failed, and 4 were absent actually. But still, the result is good. Don't worry about it. Okay, shall we start with the lecture? Today's lecture. I will start with the concept. Okay. And the concept for today's lecture starts with an equation. Fine. So I request everyone to note down the equation. The second order transfer function of a second order system is given as, this is a general transfer function. General म्हणजे सगळ्यांना applicable आहे. It is applicable to every second order system. Okay. So note down the equation. The equation is very, very simple. C of S upon R of S, which is output divided by input, is equal to omega n square divided by S square plus 2 zeta. This symbol is zeta actually. It is called zeta. Omega n S plus omega n square. Okay. So note down this equation properly. C of S upon R of S is equal to omega n square upon S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Clear with this? Okay. So this is a typical general equation for second order control system, and we are going to study the time response of this system. Okay. Now see here what time response is. I will show it to you in the diagram. What is the time response of a system? Of a second order system, when actually the input given is a step signal, a unit step signal. So let us see it properly. I will open it in Paint. Okay, maybe Paint will show you somewhat different. It's better that I will open it in Microsoft Picture Manager.
Fine. Yes. See here. This is called as the time response of second order system. Okay. Is everyone able to see this properly? सबको दिखाई दे रहा है ना? ये करेक्ट है? देखो, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज y of t, which is nothing but the output of a second order system in time domain. ये आउटपुट है y of t, वर्टिकल एक्सिस. और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, टाइम t, and that's why it is called as time response. It is called as time response. Okay, so understand it very properly. As you can see in the diagram, see the diagram very properly now. I will just adjust it to the window. Yes, see here, y of t जो वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रहा है सबको, ये आउटपुट है, और टाइम ये आपका एक्स एक्सिस है, टाइम. तो आपने आउटपुट प्लॉट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आउटपुट किसका है? एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है, जिसको मैंने स्टेप इनपुट दिया है. ये ध्यान में रखो, ये आउटपुट एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है, जिसको मैंने इनपुट दिया है स्टेप सिग्नल. रिमेंबर इट. अब जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, उसका जनरल इक्वेशन ऐसे होता है, C of S upon R of S is equal to omega n square divided by S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. ओमेगा n एक सिंगल टर्म है, जिसको हम लोग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओमेगा n is a single term which is the natural frequency of the system. नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम रेजोनेट होता है. आपने रेजोनेंस में सीखा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, which is also called as the resonant frequency of the system. ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम का, जिससे वो सिस्टम ऑसिलेट होता है, ओमेगा n. ओके, अब नीचे जो है 2 जीटा. अब ये जीटा जो है, जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर. जीटा को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फैक्टर. मतलब ऑसिलेशन को डैम्प करने वाला फैक्टर है ये. आपको अभी दिखाई देता हूं मैं कि डैम्पिंग मतलब क्या. ओके, तो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? लेट अस सी इट थ्रू दिस डायग्राम. सो आई विल ओपन इट विथ, आई विल ट्राई टू ओपन इट विथ पेंट. लेट अस सी. यस, वेरी गुड. आप सबको दिख रहा है ये डायग्राम? करेक्ट है? देखो, ये डायग्राम बहुत बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. इस डायग्राम में आपको डैम्पिंग मतलब क्या है समझ में आएगा. देखो, सी हियर, इस डायग्राम में भी जो वर्टिकल एक्सिस है वो y of t है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है दैट इज टाइम, और एंगल इन रेडियंस. ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर आप ठीक से देखते हो इसमें, इफ यू सी इट वेरी करेक्टली, तो पहले आप इसको देखो, सबसे ऊपर वाले को, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं अभी. ये ऊपर वाला जो है ना, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं अभी, सबसे ऊपर वाला, ये वाला, जहां पे उन्होंने बोला है ना जीटा इक्वल टू 0, यहां पे दिख रहा है आपको ये जीटा इक्वल टू 0. करेक्ट है? तो ये जो है जीटा इक्वल टू 0 को देखो, यू कैन सी जीटा इक्वल टू 0 हियर, राइट? अब जीटा इक्वल टू 0 को अगर आपने ठीक से देखा, तो ये जो लाइन है पूरी, ये जो वेव है, इट इज कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन हियर. देखो, ये पूरा का पूरा ब्लैक लाइन जो है, ये साइन वेव की तरह दिखता है, साइन वेव, राइट? और जीटा को क्या बोला है उन्होंने? जीटा 0 बोला है. मतलब डैम्पिंग फैक्टर इज 0. समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में जीटा है,
2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में, इसमें जो जीटा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। ये जीटा इधर 0 है, राइट। अब समझेंगे हम लोग इसको अच्छी तरह से, कैसे देखो, पहले ना हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स। सो देखो कैसे करते हैं फैक्टर्स इसके, ये देखो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि डिनोमिनेटर को 0 करो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है ना आपका, आपने पढ़ा ही है, यू हैव लर्न दिस इन कंट्रोल सिस्टम, कि अगर डिनोमिनेटर को आपने 0 बनाया तो ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, करेक्ट है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है आपका एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसको 0 करो। अब 0 करने के बाद ये देखो, इसका स्क्वेयरिंग करने का कंप्लीट, मतलब क्या, अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल्सो, समझ में आ रहा है, और यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। देखो आप एक काम करो, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, अच्छा एनोटेट कर रहा है कोई मेरे स्क्रीन पे, डोंट एनोटेट, ओके। मेरे स्क्रीन पे कौन एनोटेट कर रहा है, फाइन, ओके। अब सबको दिखाई दे रही है, कैन यू सी दिस नाउ प्रॉपरली, राइट। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0, अब मैं इसको 0 बनाया, डिनोमिनेटर को एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालना है मुझे, तो रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वैल्यू ऑफ b क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मतलब s का कोएफिशिएंट, नहीं s का कोएफिशिएंट, आर यू गेटिंग मी, a की वैल्यू मतलब s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a मतलब जो s स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो a है, राइट। और b के साथ, b मतलब जो s के साथ कोएफिशिएंट है, सिर्फ s का कोएफिशिएंट, मतलब b है 2 जीटा ओमेगा n, b की वैल्यू क्या है 2 जीटा ओमेगा n, ये पूरा का पूरा b है यहां पे, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। s का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो b होता है, आर यू गेटिंग मी, और c इज ओमेगा एन स्क्वायर इटसेल्फ, c जो है ये ओमेगा एन स्क्वायर है, राइट। a 1 है बिकॉज एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, a इज 1, b इज 2 जीटा ओमेगा एन, और ओमेगा एन स्क्वायर जो है ये c का वैल्यू है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सी हियर द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आप लिखो आपके बुक में, और ये
वैल्यू वहां पे पुट करके देखो तो आपको एंड में ये इक्वेशन मिलेगा जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये इक्वेशन, राइट। नहीं तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करो। देखो अनदर मेथड दे हैव गिवन हियर इज कंप्लीट द स्क्वायर। कैसे करने का? इसमें जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर ऐड करने का एंड जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का, ताकि इसका पूरा स्क्वायर बन जाए, सो दैट इट विल गेट कंप्लीटेड एज अ होल स्क्वायर। मतलब देखो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ये टर्म ऐड किया जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी किया माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। मतलब अगर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जीरो ही आता है। प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये ओमेगा एन स्क्वायर जो है एंड में वो वैसा ही है इधर, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो इसमें अगर ये पहला वाला ग्रुप लेते हैं हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जिसमें ए का वैल्यू एस है और बी का वैल्यू जीटा ओमेगा एन है। तो देखो एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर बन गया। इसको एक्सपांड करो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को, कैसे दिखेगा? ए स्क्वायर मतलब क्या? एस स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एस इंटू जीटा ओमेगा एन, मतलब 2 इंटू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये पहला वाला जो ग्रुप है इसका ये स्क्वायर बन गया माइनस। अब ये दूसरा वाला जो ग्रुप है इसमें से ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से ओमेगा एन स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, राइट। हाँ बोलो। हेलो। हाँ यस बोलो। हाँ सर, स्क्रीन ऑफ हो गया था। ओके अभी चालू है स्क्रीन? हाँ सर। अरे यार ये स्क्रीन बहुत तकलीफ दे रहा है। ओके ओके अभी चालू है स्क्रीन? यस 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 सर। ओके फाइन। देखो ध्यान से देखो अभी ये जो है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, इसका पूरा एक स्क्वायर बनता है एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये बाकी रहता है इधर, इज इक्वल टू जीरो, फाइन। अब इसमें क्या होता है देखो, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस इसमें से ओमेगा एन को ओमेगा एन स्क्वायर को बाहर निकालो एक्चुअली, तो अंदर क्या बचता है? 1 माइनस जीटा स्क्वायर बचता है, इज इक्वल टू जीरो, राइट। और अगर मैंने उसका स्क्वायर किया तो क्या होता है? ओमेगा एन का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही बचता है ना। तो ये स्क्वायर है, मतलब ये दो स्क्वायर है, इज इक्वल टू जीरो। ओके अब इससे एस की वैल्यू बहुत आसानी से बन सकती है। आर यू गेटिंग मी? मतलब ये प्लस अगर मैंने इस तरफ भेज दिया तो माइनस बन जाता है वो, और यहां पे स्क्वायर है और यहां पे माइनस है। आर यू गेटिंग मी? एक स्क्वायर है और एक माइनस है, यहां पे स्क्वायर है और ये प्लस इधर गया तो माइनस होता है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? इधर माइनस है तो क्या आएगा? अगर माइनस है तो क्या आ सकता है? तो इस तरफ माइनस गया ना, और ये स्क्वायर है, तो अगर माइनस गया इधर तो जे आता है ना, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जे, तो इमेजिनरी फैक्टर आता है इधर जे। तो आपका एक पोल जो है वो पोल ऐसा आता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और दूसरा पोल ऐसा आता है माइनस जीटा ओमेगा एन
माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये दोनों पोल ऐसे आते हैं। एक तो ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो एक काम करो डायरेक्टली माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें आप ले सकते हो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर और b इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। ये वैल्यू ले सकते हो और फिर वो वैल्यू लेके आप रूट्स फाइंड आउट करो। रूट्स आपको ये दोनों मिलेंगे एंड में, ये वाले रूट्स s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर और माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है? कैन एनीवन कमेंट ऑन द रूट्स? ये रूट्स कहां पे है और कैसे है? ये रूट्स, ये दोनों पोल है सिस्टम के, क्योंकि देखो सिस्टम सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर है मतलब इसमें दो पोल्स है और एक भी पोल ओरिजिन पे नहीं है यहां पे। मतलब दोनों पोल कहां पे है ये वैल्यू डिसाइड करते हैं। किस किस के वैल्यू? जीटा और ओमेगा एन के वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? मतलब जीटा और ओमेगा एन ये डिसाइड करेंगे कि पोल कहां पे लोकेट होता है और कैसे। ये पोल अगर उधर है तो कैसे करेगा बिहेव सिस्टम, ये सिस्टम एक्चुअली बताता है आपको। गेटिंग मी? तो ये नोट डाउन करो, s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है, ये पहला पोल है आपका, मतलब पोल नंबर 1। और दूसरा पोल नंबर जो है दैट इज s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये दूसरा पोल है। समझ में आ रहा है? दो पोल्स है, दोनों भी लेफ्ट साइड पे है। करेक्ट है? दोनों पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे है। इन देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का रूट्स निकाला। आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूट्स निकालने को आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे कैसा है कि एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, अगर इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और यू हैव टू यूज दिस मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अगर आपने दोनों में से एक भी मेथड यूज किया तो आपको दो रूट्स मिलते हैं। एक पहला वाला रूट मिलता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और दूसरा रूट मिलता है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, ये रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ऐसा लिखा मैंने तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूट्स क्या होंगे? इट इज x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -1, दो रूट्स हो जाएंगे इसके। करेक्ट है? अब इसमें रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहां पे रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है। अंडरस्टैंड इट? ये दोनों रूट्स, इसमें रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट इज माइनस जीटा ओमेगा एन, ये रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट मतलब जे के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मतलब ये दोनों रूट्स जो है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। एक ऊपर है और एक नीचे है। रूट लोकस में अगर आपने देखा होगा a प्लस जे बी और a माइनस जे बी, तो a इज रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट।
ए प्लस जेबी जो होता है वो ऊपर होता है और ए माइनस जेबी जो होता है वो नीचे होता है, लेकिन दोनों भी इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होते, इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं. रिमेंबर दिस वेरी वेल, दीज आर लेफ्ट हैंड साइड पोल्स. ओके, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है मतलब एक ऊपर पोल है, मतलब रियल एक्सिस के ऊपर एक है और रियल एक्सिस के नीचे, दोनों सेम डिस्टेंस पे है. जितना एक पोल ऊपर है उतना दूसरा पोल नीचे है. आर यू गेटिंग मी? दोनों एक दूसरे का मिरर है, मिरर. क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर? सबको ये बात क्लियर है क्या? देखो दो रूट्स निकले मेरे. कौन कौन से रूट्स निकले ये लिख के लो, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं. you will not understand unless and until you solve it and write it. ये देखो s is equal to minus zeta omega n plus j omega n under root 1 minus zeta square. ये पहला रूट है. और दूसरा रूट minus zeta omega n minus j omega n under root 1 minus zeta square. This is the second root. Clear? Right? ये पहला रूट और ये दूसरा रूट. अब ये दोनों भी रूट जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के. एक a प्लस जे बी है. देखो a क्या वैल्यू इधर माइनस जीटा ओमेगा एन है, प्लस j इंटू बी, तो b का वैल्यू क्या है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है. और दूसरा a माइनस जे बी है, a माइनस जे बी. इसमें a का वैल्यू क्या है माइनस जीटा ओमेगा एन और b का वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये ध्यान में रखो. राइट? तो दोनों भी कैसे पोल्स है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स है. एक रियल एक्सिस के ऊपर है पोल और दूसरा रियल एक्सिस के नीचे पोल है, और दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड पे है पोल्स. क्योंकि यहां पे माइनस साइन है. ये माइनस साइन मतलब क्या कि पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये समझ के ले लो पहले. माइनस साइन का मतलब होता है कि पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली किधर? लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली कहां पे? अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों भी पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. एक रियल एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर और दूसरा उसके नीचे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, दोनों एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा दिखेगा पोल आपको. क्लियर विद दिस? ये कंसेप्ट सबको क्लियर है क्या? देखो सिर्फ आपको कंसेप्ट जानना है, आपको ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना है. इसमें कंसेप्ट जान के ले लो. जीटा का मतलब क्या होता है ये जान के ले लो. क्लियर विद दिस? राइट? ओके. अब देखो इसमें क्या करो आप, ये इक्वेशन में आप एक काम करो, अभी जीटा का वैल्यू 0 कर दो. बताओ मुझे क्या आता है. जीटा वैल्यू 0 कर दो तो क्या आएगा इक्वेशन? दो रूट्स कैसे आएंगे बताओ. जीटा 0 कर दो